हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं और इस कानून के जरिए से जो तमाम अवाम को तकलीफ हो रही है उसको विड्रॉ कर लें, उसके लिए ये एहतजाजी जलसा मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान बसता है और हमारे आबा और अजदाद ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। अगर आपको तारीख का इल्म होता और अगर आप तारीख के औराक को पलटते तो आपको पता चल जाता कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप जहां पर रहते हैं उसी के थोड़ी दूर पर हमसे हो हम तुमसे नहीं, तुम हमसे हो हम तुमसे नहीं। हम अगर जुदा हो गए तो तुम फना हो जाओगे, हम अगर जुदा हो गए तो तुम फना हो जाओगे। तुम मिट्टी धूल राख में उड़ जाओगे। हम वतन की मोहब्बत करते हैं, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। इस शेर के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ काजी साहब जमात ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದಂಥ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇವೆ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ? ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ? ಏನು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವೋ और ದೇಶ ಬಚಾವೋ, ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ CAA ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, NRC ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, NRP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. कि हम जब अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, अमन और शांति का मुजाहरा करते हैं और देश का जो कानून है अभी यहाँ डिसिप्लिन के लिहाज से इस बात का ख्याल रखें। चिराग से चिराग जले उजाला होता है, काले कानून से सिर्फ अंधेरा होता है। आईन को बदलकर दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? दुर्गा जागेगी तो बेमौत मारे जाओगे। अब वक्त आ गया है, दुर्गा बन गुजारिश है कि कम से कम इन माँ बहनों को जो धूप में बैठी उनका एहसास करते हुए आप भी जरा अंदर तशरीफ लाए। वहाँ बहुत सारी और माँ बहनें हमारी आ गई, उनको वॉलंटियर साहब से गुजारिश के अंदर लाए। CAA ಮತ್ತು NRC NPR ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ನಾಗರಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಾಗರಿಕರು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರ ತರಹ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ,
ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇವರು NRC ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು NPR ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಊರು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನುವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಬಯಸ್ತಾರ ಅವರು? ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾವ ಆಟ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋವುಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಯುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಬಿಜೆಪಿ, RSS ಇವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಬರಿಬಾದು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶವನ್ನು ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ, ನೀವು ಏನು ಕೇಳಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ? ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿವಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ ಈ ದೇಶದ ಮಾಲಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ನಿನಗ ನಾಚಿಕಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗ ಬುದ್ಧಿ ಐತೆಯಾ ನಿಮ್ಗ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಹೆಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದ. ನೀ ಏನು ಕೇಳೋದು? ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದ. गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें. जैसे मैंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हमें बहुत मुख्तसर टाइम दिया गया है, उसके दायरे का ख्याल रखते हुए बात करें. शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ डराने लगे, शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ डराने लगे. गुजारिश है कि अपने ख्यालात करें. रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू. अल्लाह के वास्ते जरा करीब आ जाओ, बैठ जाओ. यह एहतजाज जो है पूरे शहर के एतबार से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एतबार से हो रहा है. पैदा नहीं हुई है. बहरहाल अब फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू होता है कि मैं कह रहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहून. और MPR वगैरह के तरफ देखिए, हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उस वक्त के बाद 1940 पर 9 में या और 1950 26 जनवरी को दस्तूर बनकर लागू हो गया. उसी दस्तूर में इस मुल्क की शहरियत देने के उसूल बता दिए गए हैं कि कौन कौन इस मुल्क का शहरी है. भाई बर्थ है, भाई किसी से 5 उसूल बताए हैं, उसके तहत ये चीज चली हुई है और चली रहा था. फिर क्या हुआ कि पिछले दिनों 1980 के बाद में आसाम गणी परिषद वगैरह के ताल्लुक से वहां गलाटे हुए कि बाहर के लोग यहाँ आए, हमारा जीना मुश्किल कर दिए हैं. तो फिर उसके बाद एक NRC बना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप. तो उसमें जब आया तो पता चला कि 40 लोग NRC में नहीं है. तो फिर पूरे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए. उसके बाद में फिर वहां कुछ और चीजें रद्द बदल करके फिर एक मरतबा सर्वे हुआ तो 19 लाख लोग बाहर हो गए, NRC में नहीं. वो शायद साबित नहीं कर सके. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यहाँ पर बैठे सभी भाइयों और मेरे बुजुर्गों को मेरा सलाम अर्ज हो. मैं आपके सामने कुछ जुमले कहूँगी तो मेरे आवाज पर आप सबको आवाज देना होगा. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो.
आजादी ये टीपू वाले, ये टीपू वाले, अशफाक वाले, अशफाक वाले, फातिमा वाली, फातिमा वाली। अरे हम क्या चाहे, अरे हम क्या चाहे, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैनियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर लीजिए कि जज्बे के साथ काम करेंगे, होश के साथ काम करेंगे, दायरे में रहकर काम करें, चलो इंशाअल्लाह। करीम अम्मा बाद, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आज की इस मजलिस ने हम सब के अंदर में जो है एक आग पैदा कर दी है। बिलखुसूस इन बच्चों के ग्रुप ने एक आजादी की आग, पूरे मुल्क में एक आजादी की आग चल रही है। अब मसला एनआरसी का और सीएए का और एनपीआर का नहीं रहा, अब मसला आजादी का बन चुका है। ये एक लड़ाई बन चुकी है आजादी की, वो आजादी कि जो हमें 3000 साल से चाहिए थी, वो आजादी जो हमें 3000 साल से चाहिए थी। 3000 साल से हम गुलाम हैं और हमें 3000 साल से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। 1947 की आजादी मेरे भाइयों झूठी आजादी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अगर देश वाकई आजाद होता तो यहाँ का पैदा होने वाला हर बच्चा अपने पैदा होने से लेकर के ग्रेजुएट बनने तक जो है गवर्नमेंट के जो है कोटे से जो है तालीम याफ्ता होता। आज तालीम के लिए बच्चे तरस रहे हैं, आज रोजी रोटी के लिए बच्चे तरस रहे हैं। झारखंड के अंदर में बच्चे भूख भूख रोटी रोटी कहते मर गए हैं। आज 80% पॉपुलेशन की कमाई का हिस्सा मेरे भाइयों रोजाना का 11 रुपए पर आकर के टिक गया है। तो ये आजादी की लड़ाई है, इसे सिर्फ एनआरसी और सीएए और एनपीआर तक हमें महदूद नहीं करना है। हम जो है उन जालिमों से कह रहे हैं अभी से होश में आओ, इससे पहले कि मुसलमान और एससी और ओबीसी जाग करके तुम्हारा हिसाब लेना शुरू कर दें, इससे पहले होश में आ जाओ। फिर ये एनआरसी नहीं रहेगा, एनपीआर नहीं रहेगा, सीएए नहीं रहेगा। दो जुमले जोड़ता हूं, हम प्रो कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल व करम और उसी की तौफीक व इनायत जिसके बाइस हम तमाम आज के इस अजीम शान एहतजाजी जलसे आम में शिरकत की सआदत से बहरामंद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री और हम सब की शिरकत और हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 30 जमातों के फेडरेशन के तमाम जिम्मेदारों की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिनकी मेहनतों से आज का ये एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जिम्मेदारों को, नौजवानों को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। इस एहतजाजी जलसे आम की गर्ज़ व गायत से आप तमाम हज़रात वाकिफ़ हैं। मुल्क के हालात हम सब के पेश नज़र हैं। आज़ादी हिंद के बाद
70 सालों में हिंदुस्तान में ऐसे हालात इससे कबल कभी ना पैदा हुए जैसे हालात आज हिंदुस्तान में पैदा हुए। इस अजीम मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लेकर वतन अजीज को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। हमारा अपना मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है। हमारा देश बड़ी अजमतों वाला देश। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हिंदुस्तान इतना प्यारा मुल्क है कि दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक एक तरफ रखे जाएं और हिंदुस्तान को एक तरफ रखा जाए तो दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना अजीम मुल्क, इतना अजीम देश, इतना अजीम वतन है। ये मुल्क हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का मुल्क है। ये मुल्क महावीर का मुल्क है। ये मुल्क बसवन्ना का मुल्क है। ये मुल्क टीपू सुल्तान शहीद का मुल्क है। ये मुल्क अशफाकुल्लाह खान का मुल्क है, भगत सिंह का मुल्क है। ये मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर का मुल्क है, महात्मा गांधी का मुल्क है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, मौलाना आजाद का मुल्क है। ये मुल्क हम सब का मुल्क है। इसीलिए बड़ी मोहब्बत के साथ इकबाल ने इस मुल्क की शान अजमत बयान करते हुए कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। इस मुल्क की अजमतों को हम सुबह शाम सलाम करते हैं। आप तमाम हजरात तवज्जो करें। हम दिन रात इस मुल्क की अजमतों को सलाम करते हैं। ये मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है। इस मुल्क का बड़ा मकाम, इस मुल्क का बड़ा मर्तबा है। आजादी हिंद के बाद 70 सालों में पहली मर्तबा हिंदुस्तान के अजीम दस्तूर को बदलने की नापाक कोशिश और साजिश हुई है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस मुल्क को एक निजाम के साथ चलाने के लिए दस्तूर मुरत्तब किया गया। इस देश के निजाम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के इस्तेहकाम के लिए, इस देश में भाईचारा के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने, उनके साथियों ने दिन रात मेहनत करके दस्तूर तैयार किया। और उस दस्तूर में यह बात साफ तौर पर लिख दी गई कि यह मुल्क मजहब की बुनियाद पर नहीं बना है, ये मुल्क मोहब्बत की बुनियाद पर बना है। और आखिर में मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जैसे बीजापुर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाजिद में फजर की नमाज के साथ या फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला वगैरह की तरकीब है, ऐसे ही आप तमाम अपने अपने मसाजिद में आयत करीमा का विर्द करेंगे। ख़वातीन आयत करीमा का विर्द करेंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए कि हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मजहब हमें यही तालीम देता है कि दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। और कल मगरिब की नमाज के साथ बीजापुर शहर के तमाम जमातों की एक अहम मीटिंग रखी गई है स्टार फंक्शन हॉल में। स्टार फंक्शन हॉल में
तमाम जमातों की एक अहम मीटिंग रखी गई है मगरिब की नमाज के साथ। जितने जिम्मेदारान हैं कल मगरिब की नमाज के साथ स्टार फंक्शन हॉल में तशरीफ लाएंगे। गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर 6-7 अजला पर मुश्तमिल जो एहतजाजी जलसा आम हुआ जिसने एक तारीख रकम की है, और हमारे दरमियान आज एडवोकेट वहाज जुनैदी साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। गुलबर्गा की तर्ज पर बड़े पैमाने पर 7 अजला के हिंदुस्तानियों को जमा करने के लिए कल की मीटिंग रखी गई है, और कल की मीटिंग बड़ी अहम मीटिंग है। बड़े पैमाने पे एक तारीखी एहतजाजी जलसे आम बीजापुर में होने जा रहा है। वो जलसे आम इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा की तर्ज पर होगा। बड़े पैमाने पर आप सब उसमें शिरकत करेंगे, उसके लिए मशवरा रखा गया है। कल मगरिब की नमाज के साथ आप स्टार फंक्शन हॉल में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम जिम्मेदार तशरीफ लाएंगे ना इंशाअल्लाह, तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मगरिब की नमाज के साथ आप तशरीफ लाएंगे, स्टार फंक्शन हॉल में तशरीफ लाएंगे। और ये कल की मीटिंग मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल जिला बीजापुर यानी MMC की जानिब से बुलाई गई है। कल की मीटिंग में आप तमामी हजरात तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मजीद बातें होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे चाहिए था कि मैं कुछ देर पहले आ जाता और तनवीर हाशमी साहब से कब्ल अपनी बात रखता, तो लिहाजा मैं मुख्तसर अंदाज में आप लोगों से अपनी बात कर मेरी बात ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि आपकी अगर इजाज़त हो, आपने जिस तरीके से फरमाया कि ये मुसलमानों का नहीं, ये दलितों का नहीं, ये हिंदुओं का नहीं, ये सिख ईसाई का नहीं, बल्कि ये हमारे मुल्क का मसला है, ये हमारे मुल्क के संविधान का मसला है। इसीलिए आज के इस जलसे से हम हलफ उठाते हैं कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। आज फिरका परस्त पार्टी सिर्फ 303 लेकर इस संविधान को बदलाना चाहती है। आज हम हलफ उठाकर उन्हें बताएंगे कि 303 नहीं बल्कि तुम 545 भी हो जाएंगे तो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई सब मिलकर इस देश के संविधान के एक लफ्ज को हम बदलने नहीं देंगे। इंडिया into a sovereign socialist republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, liberty of thoughts, expression, beliefs, faith and worship, equality of status of opportunity. अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खून से खेलेंगे होली, डर वतन मुश्किल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैं यहां पर आने का मकसद 21 जनवरी के दिन आप लोगों ने जिस जज्बे के साथ आए उस जज्बे को मैं सलाम करने के लिए आया हूं, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं और आप लोगों से माजरत खाई भी करने के लिए आया हूं। बीजापुर की सरजमीन से आपके और हमारे कायद तनवीर हाशमी साहब किबला के जानिब से किए गए, तो यहाँ के एमएलए साहब कहते हैं कि हमने इन्हें तिरंगे को मजबूर चूमने से मजबूर कर दिया। बल्कि मैं उन्हें बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं उन्हें यहां से बताना चाहता हूं कि तनवीर हाशमी साहब किबला ने भी
फरमाया कि ये तिरंगे को डिजाइन करने वाली हमारी नानी तैयब जी, और उसके बाद में सुरैया, उसके बाद में वो चक्कर जो है ना, चक्कर अशोक चक्कर, उसको बीच में लाने वाले हमारे दादा तैयब जी अब्दुल्ला, और इस देश के तिरंगे को लाल किले पर सबसे पहले लहराने वाले जनरल शहाबुद्दीन खान साहब। ये बात आपको बताने के लिए आया हूं कि हम ये कह सकते हैं कि आपके दफ्तर, आपके आकाओं के दफ्तर आरएसएस पर 50 साल तक ये तिरंगा नहीं लहराया। आप भगवा झंडा उठाकर फिरते थे, तो गुलबर्गा ने हमने मजबूर किया उस झंडे को फेंकने के लिए और तिरंगा को उठाने के लिए। आज हमारी वजह से आप उठा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मजबूर करेंगे इस पाक किताब को मानने के लिए भी, हम संविधान को मानने के लिए तुम्हें मजबूर करेंगे। वो इसलिए कि अगर ये संविधान की किताब सुरक्षित तो इस देश की गीता सुरक्षित, अगर ये संविधान की किताब सुरक्षित तो इस देश की बाइबल किताब सुरक्षित, अगर इस देश की संविधान किताब सुरक्षित तो कुरान मजीद सुरक्षित। And profound sorrow express our disapproval towards the new legislation of citizenship, with a request to exert pressure upon the government of India to withdraw CAA 2019 in the best interest of plurality of our country. ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा, तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888.
ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.